أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القراءة الواضحة الجزء الثاني جس میں ہم پڑھ رہے ہیں الساعة. صحیح ہے؟ کیا ہے یہ؟ الساعة. ٹھیک ہے. با جب انشاءاللہ خداوند عالم آپ کو عمرہ یا حج کی سعادت عطا کرے گا تو خانہ کعبہ کے پاس کلاک ٹاور ہے. کیا ہے؟ کلاک ٹاور. عربی میں اس کو کہتے ہیں ابراج الساعہ. کلاک مانے کیا ہوتا ہے؟ گھڑی. صحیح ہے. تو کلاک ٹاور گھڑی والی ٹاور، گھڑی والی بلڈنگ. عربی میں جب اس کو دیکھیں گے تو اس کا نام ہے الابراج الساعہ. یعنی وہ ایسا بنا ہوا ہے مولانا کہ مکے کے کہیں کتنی دور چلے جائیں ہر جگہ سے نظر آتا ہے. آئیے دیکھ لیجیے. کلاک ٹاور. خانہ کعبہ میں آپ جائیں گے تو خانہ کعبہ کے اندر سے نظر آئے گا، باہر جائیں گے باہر سے نظر آئے گا. ٹھیک ہے. کہیں سے بھی پورے شہر سے دکھتا ہے. اس کے چاروں طرف گھڑی ہے. گھڑی کی سوئیاں بھی اس کی کافی لمبی چوڑی ہیں اور کئی کے میٹر کی ہیں، میرے خیال سے ایک آدمی کے برابر کی ہیں. یہ اس میں مکان ہے، رہنے کا روم ہے. اس میں یہ جو اوپر دکھ رہا ہے اس میں کیسے اور ہے اس میں، یہ ایسا نہیں ہے، یہ روم ہے. یہ اس میں روم ہے، سارے روم ہیں. اب اس میں کیا ہے، یہ ایک خوبصورت منظر ہوتا ہے وہاں پہ. اس کا خانہ کعبہ کے اندر سے بھی نظر آتا ہے یہ. ٹھیک ہے. پورے مکے دکھ رہا ہے نہیں یہیں پہ. تو اس کو اردو میں دیکھیں مکہ کلاک ٹاور. اس کو عربی میں کیا کہیں گے؟ ابراج الساعہ. برج یعنی ٹاور. برج خلیفہ ہے نا، تو وہی ٹاور کو کیا کہیں گے؟ برج. یہ بتا دیا تھا کہ آپ کے ذہن میں رہے یہ بات، ہے کہ نہیں؟ انشاءاللہ خدا سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے. کہہ رہے تعلم رضی من اخیہ. تعلم یہ باب تفاعل ہے مولانا. کون سا ہے؟ تفاعل. صحیح ہے. تعلم رضی، رضی نے سیکھا. رضی نے سیکھا. من اخیہ اپنے بھائی سے. وعلیکم السلام گلشن. من اخیہ اپنے بھائی سے. معرفت الوقت، وقت کا جاننا. بالساعت گھڑی کے ذریعے. تعلم رضی من اخیہ، رضی نے سیکھا اپنے بھائی سے. معرفت الوقت، وقت کا جاننا. بالساعت گھڑی کے ذریعے. صحیح ہے. اب یہاں پہ دیکھیے مولانا، اسی لیے جو طالب علم ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں متعلم. کیا بولتے ہیں؟ متعلم. آپ جیسے کہیں لکھیں گے اپنے آپ کو، لکھیں گے سمر عباس جعفری متعلم حوزہ علمیہ امام حسن عسکری. صحیح ہے. یعنی آپ حوزہ علمیہ امام حسن عسکری سے کیا حاصل کر رہے ہیں؟ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو متعلم اس کو بولتے ہیں. تو تعلم جو ہوتا ہے کیا؟ سیکھنے کو. صحیح نا. اور علم یعلم جو ہوتا ہے باب تفعیل میں سکھانا. علم یعنی
सिखाया, ताल्लमा यानी सीखा। फर्क आया समझ में बाप का? फिर बता दो बोर्ड का सहारा लेके, ताकि इस चीज को तर्क कर सके। सही है कि दोनों बाब में फर्क क्या है? शहरोज फातिमा, यहां देखिए, एक बाबे तफईल है और एक बाबे तफाउल है। क्या है? तफाउल। अल्लमा एक है तअल्लम। ठीक है ना? ये तअल्लमा इस तरह से है, यहां लिख देना। ये बल्ब डिस्टर्ब कर रहा है, यहां लिख दिया। ये अल्लमा और तअल्लम, ये माजी है। इसका मुजारे बनेगा यतअल्लमु, यतअल्लमु, यतअल्लमु। क्या बनेगा? युअल्लिमु। क्या बनेगा? युअल्लिमु। सही। तअल्लमा यतअल्लमु तअल्लुमन। क्या होता है? तअल्लुमन। या अल्लमा युअल्लिमु तअलीमन, तअलीमन। तालीम माने क्या होता है? तदरीस, पढ़ाना, सिखाना। तो अल्लमा यानी उसने सिखाया, उसने तालीम दी। युअल्लिमु वो सिखाता है, इसीलिए इससे इसी से बनता है मुअल्लिम, उस्ताद। और ये जो तअल्लमा है ये बाब तफाउल है, तफाउल। सही है। इसके माने होता है तअल्लमा उसने सीखा, ये तअल्लमु वो सीखता है। आई समझ में? तो ताल्लुमन यानी सीखना। तो अबवाब से जो है, अबवाब में बाप में ले जाने का फर्क ये आता है, यहाँ सिखाना और यहाँ सीखना। फर्क है कि नहीं दोनों में? तो अगर सिखाने की बात करनी है तो क्या होगा? अल्लाह। सीखने की बात करनी है तो आपको किसमें कहना है? अल्लाह। बाबे तफाउल में लाके आपको बोलना होगा। और यहाँ जो माफी आया मौलाना, अल्लमा आया है कि तअल्लमा आया है? तअल्लम। इस पे गौर करना, आगे आ जाएगा मेरे ख्याल से। तो तअल्लमा रज़ी, रज़ी ने सीखा। मिन अखी है, अपने भाई से। मारिफतल वक्ते, वक्त का जानना। बिस्साते, घड़ी के जरिए। तो यहाँ तअल्लमा फेल है, रज़ी फाइल है, मफऊल मारिफा है मौलाना। मारिफा क्या है? मफऊल है। हुआ यक़दिरुल आना, हुआ यक़दिरुल आना। यक़दिरु माने कुदरत रखना। हुआ यक़दिरुल आना, वो अभी कुदरत रखता है। अन यंज़ुरा इला साअते, कि देखे घड़ी की तरफ। अन यंज़ुरा यानी के देखे, इला साअते घड़ी की तरफ। यहाँ पे अनलन कई इदन के बारे में तो जानते हैं कि नहीं जानते? जी ये फेले मुदारे पे दाखिल होते हैं और फेले मुदारे को क्या देते हैं? नस्ब देते हैं। फेले मुदारे को वयारिफुल वक्त नहीं, वयारिफा पढ़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि यारिफा को किस पे अत्फ किया जा रहा है? यंजुरा पे। यंजुरा इला साअते, कि वो देखता है घड़ी की तरफ। वयारिफल वक्त, और जानता है वक्त को। बिवक्त सही सही, बिवक्त यानी सही सही।
उसको बोलते हैं ज़ब्त। दूना खतइन, दूना खतइन, बिना गलती के। अगर जी दो है, अगर बताइए। अगर दो है या दू है? दौना, मेरे ख्याल से दौना नहीं होता, दूना होता है। ये पेश जबर नहीं आएगा, पेश आएगा दूना। दौन नहीं, दून, दून लफ्ज दून है, ठीक है। दूना खतइन, बिना गलती के। कालल अखुल कबीरो, बड़े भाई ने कहा। लिल अखिस सगीरे, छोटे भाई से। उरीदो, अरादा युरीदो माने क्या होता है मौलाना? चाहना, सही है ना। उरीदो अन अख्तबिरकल आना। उरीदो अन अख्तबिरका, इख्तिबार कहते हैं मौलाना चेक करना, इम्तिहान लेना। इम्तिहान और इख्तिबार एक ही बात है, समझ में आई बात? उरीदु अन अख्तबिरकल आना, मैं चाहता हूं कि तुम्हें चेक करूं अभी। कालल अखुस्सगीर फरहन, छोटे भाई ने कहा खुशी खुशी। या फरहन का एराब क्या होगा मौलाना? पीछे गुजर चुका है? अरे फरहन हाल है, क्या है? हाल। जिससे फाइल या मफऊल की हालत का पता चले उसको क्या कहते हैं? हाल। तो छोटे भाई ने क्या कहा? खुशी खुशी। तो ये खुशी खुशी छोटे भाई की हालत हुई या नहीं हुई? अना हाजिरुन, मैं हाजिर हूं। मुस्तइद्दुल लिल इख्तिबार, इम्तिहान के लिए आमादा हूं। इम्तिहान के लिए आमादा हूं। अल अखुल कबीर अजिब अला सुवाली, देखिए यहां दूना आ गया ना, यहां दूना आ गया, यहां गलत ही था वो, ठीक है। दौना लफ्ज नहीं होता है, क्या होता है? दूना। वो चूंकि जेर और जबर जो है ना, यानी अरबी में जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड पे जो जेर जबर लगता है, ऊपर की कीबोर्ड में, हाँ मैं आपको कीबोर्ड से ही बता दूं आपको, ये याद रखिए, जब अरबी लिखी जाती है तो अरबी में, आओ देखो बेटा बता दूं यहाँ पे, इससे क्यू से, अरबी में क्यू से एक जबर लगता है, डब्ल्यू से दो जबर लगता है, ई से एक पेश लगेगा, आर से दो पेश लगेगा। तो चूंकि ये बराबर बराबर का मसला है, मुमकिन है कि जल्दी जल्दी में पेश की तरफ उंगली ना जाके कहां गई हो? डब्ल्यू पे गई है। डब्ल्यू पे नहीं, क्यू पे, मुमकिन है। यानी हमसे हो जाता है, जैसे हम उर्दू कभी टाइप करते हैं तो अब जे से शिफ्ट के साथ जे वाद होता है, और बिना शिफ्ट के जे क्या होता है? जीम होता है जो है शिफ्ट के साथ एच लिखते हैं तो हा, और विदाउट शिफ्ट क्या होगा? दो चश्मी है। अब पता चला हम हजरत लिख रहे हैं, बटन सही से नहीं दबा, क्या हो गया? हजरत हो गया। ये होता है कंप्यूटर में, जब तक तहकीक न की जाए। तो अजीब अला सुआली, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। दून नजर इला साआ, बिना घड़ी की तरफ देखे हुए।
बिना घड़ी की तरफ देखे हुए। अब ये जो क दिया हुआ है, क यानी ये इशारा कर रहा है कबीर की तरफ, बड़े भाई की तरफ। समझ में आया? बड़े भाई की तरफ। पूछा कबीर ने, कम तकून साअतो, कितना वक्त होगा? कम तकून साअतो यानी कितना वक्त होगा? इंदमा यरकबुल अक़रबुल कबीरो, अक़रब यानी सुई। इंदमा यरकबुल अक़रबुल कबीरो, कि जब सवार हो बड़ी सुई। जब सवार हो बड़ी सुई, अलल अक़रब सगीरे, छोटी सुई पर। जब बड़ी सुई छोटी सुई पर सवार हो। अजिब बेगैर ताखीरिन, बिना देर किए जवाब दो। बिना देर किए, बेगैर ताखीरिन यानी बिना देर किए जवाब दो। सगीर ने जवाब दिया, साद यानी सगीर। इंदमा यरकबुल अक़रबुल कबीरु अलल अक़रबिस सगीरे। इंदमा जब कहा जाता है मौलाना, तो इसके माने होगा जब या जिस वक्त। ठीक है ना? क्या तर्जुमा करेंगे? जब या जिस वक्त। यरकबुल अक़रबुल कबीरो, जिस वक्त बड़ी सुई सवार हो, अलल अक़रबिस सगीरे, छोटी सुई पर। तकूनु साअतु हीनइज़िन इत्नतै अशरा, तो तकूनु साअतु हीनइज़िन, तो वक्त होगा उस वक्त। हीनइज़िन यानी उस वक्त। इत्नतै अशरता, 12। सही है? जब छोटी सुई बड़ी सुई पे सवार हो तो क्या बजेगा? 12। कबीर ने कहा, जवाब का सही हूं, हमारा जवाब सही है। ऐन तयकूल अक़रबुल कबीरु वल अक़रबुस सगीरु फिस्साअति अशरतिन व निस्फ। फिर उसने, कबीर ने सवाल किया कि कहाँ होगी बड़ी सुई, वल अक़रबुस सगीरो, और छोटी सुई, फिस्साअति घड़ी में। कब मौलाना? अशरतिन व निस्फ, 10:30 बजे। तो सगीर ने क्या जवाब दिया? फिस्साअते अशरतिन व निस्फ, यानी 10:30 बजे। यकूनुल अक़रबुल कबीरो, बड़ी सुई होगी, अला रक़म 6 नंबर पर, वल अक़रबुस सगीरु अला रक़म 10 व 11। सही है? और छोटी सुई होगी 10 और 11 के दरमियान। बड़े भाई ने कहा, लखुल कबीर सही हूं, तुम्हारा जवाब सही है। बारकल्लाहु फीका, अल्लाह में तुम्हें क्या दे? बरकत दे। इन्होंने तमरीन को कल किया जाएगा। जब उसने कहा अल्लाहुल कबीर सही, तो उसने जवाब दिया क्या था? सही था। कहा बारकल्लाहु फीका। अरब में याद रखिएगा, कोई भी काम होता है तो उसके बाद वो दुआ या कलिमात जरूर बोलते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप बाल कटाने जाएंगे, अनअमुल्लाह कहेगा। क्या कहेगा?
نہیں انعم اللہ نہیں کہے گا، ناعمن کہے، کیا کہے گا؟ ناعمن. صحیح ہے. تو کوئی کام آپ کریں گے عرب میں ایک دعائیہ کلمات اس سے کیا ہے؟ مخصوص ہے. تو جب کہا اس نے صحیح جواب دیا تو کیا کہا؟ بارک اللہ فیک، اللہ تمہیں کیا دے؟ برکت دے. انک لذکی، بے شک تم ذہین ہو، بے شک تم ذہین. اب انشاءاللہ اس کی تمرین کو ہم لوگ کل دیکھیں گے. درس کو پڑھ کے آئیے گا. والحمدللہ رب العالمین.